students, welcome to the maths class. I hope you all are fine. So kids, today we will know about fractions. So the question arises, what is a fraction? A number of the form a upon b, where a and b are whole numbers and b is not equal to 0 is called a fraction. तो कोई भी नंबर जो a upon b की फॉर्म में होगा, जहाँ a और b होल नंबर्स होंगे और b 0 नहीं हो सकता, ऐसे नंबर्स को हम फ्रैक्शन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल 5/8, 8/17 and 73/45 are all fractions. In a fraction, the number above the horizontal line is called the numerator of the fraction and the number below the horizontal line is called the denominator of the fraction. For example, in a fraction 7/26, 7 is the numerator and 26 is the denominator. Now kids, we will know about types of fractions. The first is decimal fraction. A fraction whose denominator is any power of 10 is known as a decimal fraction. तो कोई भी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 की पावर्स में होगा उसे हम डेसिमल फ्रैक्शन बोलेंगे. फॉर एग्जांपल 7/10, 11/100, 33/1000 एंड सो ऑन. नेक्स्ट इज बल्गा फ्रैक्शन. अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर्स इज अदर देन एनी पावर ऑफ 10 इज नॉन एज अ बल्गा फ्रैक्शन. तो ऐसी फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स 10 की पावर्स में नहीं होंगे, ऐसी फ्रैक्शंस को हम बल्गा फ्रैक्शंस बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2/3, 5/8 एंड 7/18 are all Bulgar fractions. Next is proper fraction. A fraction whose numerator is less than the denominator is known as a proper fraction. तो ऐसी fractions जिनका numerator denominator से smaller होता है, ऐसी fractions को हम proper fractions बोलते हैं. For example 1/2, 16/25 and 23/55. Next is improper fraction. A fraction whose denominator is less than the numerator is known as an improper fraction. तो ऐसी fractions जिनका denominator numerator से छोटा होता है, ऐसी fractions को हम improper fraction बोलते हैं. For example 11/5, 21/7 and 26/15. Next is mixed fractions. तो a fraction which consists of a natural number and a proper fraction is known as a mixed fraction. तो ऐसी fractions जिनमें natural number और proper fraction दोनों होते हैं उन्हें हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल 2 कंप्लीट 1/6, 3 कंप्लीट 4/5 एंड 6 कंप्लीट 2/7 ऑल आर मिक्स्ड फ्रैक्शंस. नेक्स्ट इज सिंपल फ्रैक्शन. अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर होल नंबर्स इज नॉन एज अ सिंपल फ्रैक्शन. तो ऐसी फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होल नंबर्स होंगे उन्हें हम सिंपल फ्रैक्शन बोलते हैं. यहाँ ध्यान रहे कि डिनोमिनेटर किसी भी फ्रैक्शन का कभी भी 0 नहीं हो सकता. For example 9/5, 5/8 and 23/76 all are simple fractions. Next is complex fraction. So a fraction in which either numerator or denominator or both are fractions is called a complex fraction. तो ऐसी fractions जिनमें केवल numerator या फिर केवल denominator या फिर दोनों ही fraction form में हो, ऐसी fractions को हम complex fraction बोलते हैं. For example 7/2/3, यहाँ पर denominator 2/3 मीन्स फ्रैक्शन फॉर्म में है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 2/5 होल अपॉन 17, यहाँ पर न्यूमरेटर 2/5 मीन्स फ्रैक्शन फॉर्म में है. तो ये दोनों ही फ्रैक्शन कैसी हुई? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हुई. नेक्स्ट इज लाइक फ्रैक्शन. फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस. तो ऐसी फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स सेम होंगे उन्हें हम लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1/7, 2/7, 3/7 एंड 4/7. Next is unlike fractions. So fractions having the different denominators are called unlike fractions. तो ऐसी fractions जिनके denominators different होते हैं उन्हें हम unlike fractions बोलते हैं. For example 2/7, 4/5 and 15/23. Now kids, we will know about how can we convert unlike fractions into like fractions. So taking an example of 4/3, 5/6 and 3/8. All are unlike fractions. So let us convert them into like fractions. तो फर्स्ट वी फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे. सो डिनोमिनेटर्स ऑफ दीज फ्रैक्शंस आर 3, 6 एंड 8 एंड एलसीएम ऑफ 3, 6 एंड 8 इज 24. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इस एलसीएम में हम जो हमारी तीनों फ्रैक्शंस थी उनके डिनोमिनेटर से 1 by 1 डिवाइड करेंगे. सो 24 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 8, 24 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू 4 एंड 24 डिवाइड बाई 8 इक्वल्स टू 3. नेक्स्ट स्टेप में हम जो भी हमें क्वोशेंट्स मिले हैं मीन्स 8, 4 एंड 3, इन क्वोशेंट्स का मल्टीप्लाई कर देंगे हम फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स के साथ रेस्पेक्टिवली.
तो 4/3 इक्वल्स टू 4 इंटू 8/3 इंटू 8 मीन्स 32/24. 5/6 equals to 5 into 4/6 into 4 equals to 20/24. 3/8 equals to 3 into 3/8 into 3 equals to 9/24. So 32/24, 20/24 and 9/24 तीनों के डिनोमिनेटर्स सेम हो जाते हैं. So they are now like fractions. An important property of fraction is if the numerator and denominator of a fraction are multiplied or divided by the same non-zero number, then the value of the fraction does not change. Means अगर हम किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी भी सेम नंबर से एक्सेप्ट जीरो को छोड़कर किसी भी सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता है. फॉर एग्जाम्पल 5/6 इक्वल्स टू 5/2/6/2 equals to 5 into 3/6 into 3 and 30/24 equals to 30 divided by 2 upon 24 divided by 2 equals to 30 divided by 6 equals to 34 divided by 6. Next is equivalent fractions. So fractions that have the same values are called equivalent fractions. तो ऐसी fractions जिनकी वैल्यूज हमेशा सेम रहे ऐसी फ्रैक्शंस को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं. फॉर एग्जांपल 4/5, 8/10 एंड 20/25 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. किड्स, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमें तब मिलती हैं जब हम किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं. नाउ किड्स, we will know about simplest form of fraction. So if the common factor of the numerator and denominator of a fraction is only 1, तो अगर किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर 1 है तो ऐसी फ्रैक्शन को हम बोलेंगे कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या फिर अपने लोएस्ट टर्म्स में है. फॉर एग्जांपल 2/3, 7/9 एंड 13/14 आर द फ्रैक्शंस इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म. Now how can we convert a fraction into its simplest form? किस तरीके से हम किसी भी फ्रैक्शन को उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल लेट अस रिड्यूस 51/68 टू इट्स लोएस्ट फॉर्म. तो 51/68 को हम कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 51/68 का हम HCF लेंगे. 51 और 68 का HCF होगा 17. अभी हम 17 से डिवाइड कर देंगे तो 51 डिवाइड बाई 17 एंड 68 डिवाइड बाई 17 विल बिकम 3/4. So 3/4 is the simplest form of 51/68. ऑल्टरनेट मेथड भी होता है इसका. हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हम दोनों ही मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स कर लें और उसके बाद प्राइम फैक्टर्स को रिड्यूस कर दें. तो जो हमें लास्ट में आंसर मिलेगा इट विल बी द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन. एग्जाम्पल के लिए आपको दिया गया है 120/900. तो 120 के हमने जब प्राइम फैक्टर्स किए तो वो आए 2 × 2 × 2 × 3 × 5. 900 के फैक्टर्स थे 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5. इनको हमने रिड्यूस कर दिया सो इट बिकम्स 2/15. सो 2/15 इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ 120/900. नेक्स्ट इज हाउ वी कैन कंपेयर फ्रैक्शंस. मीन्स कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन छोटी है. सो द मेथड ऑफ कंपेयरिंग टू और मोर फ्रैक्शन इज एज फॉलोज. फर्स्ट इज कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस. तो पहले हम इन्हें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस को. एंड देन द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर न्यूमरेटर एज ग्रेटर. उसके बाद जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन भी बड़ी हो जाएगी. सिंस लाइक फ्रैक्शन करने पर उनके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम हो जाएंगे. नाउ इंसर्टिंग अ फ्रैक्शन बिटवीन टू गिवन फ्रैक्शन. हम दो फ्रैक्शंस के बीच में एक थर्ड फ्रैक्शन भी इंसर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ A/B एंड C/D आर एनी टू फ्रैक्शन. अगर A/B और C/D कोई दो फ्रैक्शंस हैं तो इनके बीच में A+C/B+D की एक फ्रैक्शन भी होगी. किड्स, ध्यान रहे कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी फ्रैक्शंस लाइंग बिटवीन टू फ्रैक्शंस. मीन्स टू फ्रैक्शंस के बीच में बहुत सारी फ्रैक्शंस होती हैं. नेक्स्ट इज एक्सप्रेसिंग अ क्वांटिटी एज अ फ्रैक्शन ऑफ अनदर. टू एक्सप्रेस अ क्वांटिटी एज अ फ्रैक्शन ऑफ अनदर क्वांटिटी, डिवाइड द फर्स्ट क्वांटिटी बाय द सेकेंड. Write the fraction obtained in their lowest form. For example के लिए to find what fraction of 18 is 6 means 18 का कौन सा पार्ट है 6. तो we will first divide 6 by 18. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 6 में डिवाइड देंगे 18 से एंड देन रिड्यूस द फ्रैक्शन obtained to its lowest form. तो 6/18 जब हमने इसे रिड्यूस किया तो ये क्या आएगा 1/3 मीन्स 6 इज 1/3 ऑफ 18. मीन्स 6 क्या है 18 का 1/3 पार्ट है. Now kids, look into the examples. First is find two equivalent fractions of 12/18.
वन यूजिंग मल्टीप्लिकेशन एंड अदर यूजिंग डिवीजन। मीन्स हमें इसमें 12/18 के टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करने हैं, एक मल्टीप्लाई करके सेम नंबर से और दूसरा डिवाइड करके सेम नंबर से। सो सोल्यूशन इज 12/18 में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो 12 इंटू 2/18 इंटू 2 इट इज 24/36। So 24/36 is a equivalent fraction of 12/18. Next is 12/18 में हमने 6 से डिवाइड कर दिया, so it becomes 2/3. So 2/3 is also a equivalent fraction of 12/18. In the next example, we will see about two fractions that they are equivalent or not. So check whether the fractions 25/35 and 30/42 are equivalent or not. तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, फ्रैक्शंस का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मीन्स 25 इंटू 42 एंड 30 इंटू 35. इफ़ द प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल, अगर प्रोडक्ट इनका इक्वल आता है, सो द फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट. हमने जब मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम्स 1050 इक्वल्स टू 1050. इट मीन्स 25/35 एंड 30/42 are equivalent fractions. Next example is which of the fractions 5/6 and 7/9 is greater. Means इन दोनों fractions में कौन सी greater है. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, LCM लेंगे इनके डिनोमिनेटर्स का 6 और 9 का. So 6 और 9 का LCM आया 18. अभी हम इनके डिनोमिनेटर्स का डिवाइड देंगे LCM में और जो भी क्वोशिएंट मिलेगा उसका फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो हमने जब 6 का डिवाइड दिया 18 में, सो क्वोशिएंट आया 6 3 18 मीन्स 3. 3 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने 5/6 से, तो 5 इंटू 3/6 इंटू 3 इक्वल्स टू 15/18. सेम प्रोसेस हमने सेकंड फ्रैक्शन के साथ की, मीन्स 9 का डिवाइड दिया 18 में, तो क्वोशिएंट आया 2. 2 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने 7/9 से, मीन्स 7 इंटू 2/9 इंटू 2 इट इज 14/18. अभी जब डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम हो गए 18 एंड 18, तो अभी 15 इज ग्रेटर देन 14, मीन्स 15/18 इज ग्रेटर देन 14/18. It means 5/6 is greater than 7/9. Next is arrange the fractions 4/5, 7/10, 13/15 and 19/20 in the ascending order. We'll do the same procedure. सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर्स का LCM लेंगे. LCM लेने के बाद हर एक डिनोमिनेटर्स का डिवाइड देंगे LCM में. जो भी क्वोशिएंट आएगा उस क्वोशिएंट का हम फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे. और जब इनके न्यूमरेटर्स को जब इनके डिनोमिनेटर्स सेम हो जाएंगे तो इनके न्यूमरेटर्स को हम कंपेयर कर लेंगे और इस कंपैरिजन के बेसिस पे हम इन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं. द नेक्स्ट इज इंसर्ट टू फ्रैक्शंस बिटवीन 3/4 एंड 5/14. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 3/4 और 5/14 में टू फ्रैक्शंस इंसर्ट करनी है. सो फ्रैक्शन दैट लाइज बिटवीन 3/4 एंड 5/14, तो हमने पहले क्या किया, ऐड कर दिया इन दोनों को सिंपली. 3 + 5/4 + 15 दैट इज 4 + 14 दैट इज 8/18 मीन्स 4/9. मीन्स अ फ्रैक्शन दैट लाइज बिटवीन 3/4 and 4/9 इक्वल्स टू 3 + 4 4 + 9 इक्वल्स टू 7/13. अभी हमने दोनों फ्रैक्शंस फाइंड कर ली, मीन्स 7/13 एंड 4/9 आर टू फ्रैक्शंस लाइंग बिटवीन 3/4 एंड 5/14. नेक्स्ट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस. टू ऐड और सब्ट्रैक्ट लाइक फ्रैक्शंस, ऐड और सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर्स कीपिंग द डिनोमिनेटर्स सेम. अगर लाइक फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, उनके न्यूमरेटर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, डिनोमिनेटर्स को सेम रखेंगे. फॉर एग्जांपल 4/5 + 3/5, तो 4/5 और 3/5 दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो डिनोमिनेटर्स को सेम डिनोमिनेटर को सेम रखते हुए हमने इनके न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया, मीन्स 4 + 3 दैट इज 7/5. ऐसे ही 6/11 - 5/11 ये भी लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो इनके डिनोमिनेटर्स को न्यूमरेटर्स को सॉल्व कर लिया, डिनोमिनेटर्स को सेम रखते हुए 6 - 5 मीन्स 1 इक्वल्स मीन्स 1/11. इन केस ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस, अगर अनलाइक फ्रैक्शंस आ जाती हैं तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कन्वर्ट देम इनटू लाइक फ्रैक्शन. सबसे पहले इन्हें लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे एंड देन ऐड और सब्ट्रैक्ट देम, उसके बाद उन्हें हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. फॉर एग्जांपल 3/5 + 5/8, तो एलसीएम लेंगे हम लाइक फ्रैक्शन में इन्हें कन्वर्ट करने के लिए. 5 और 8 का इट इज 40, 5 और 8 का एलसीएम आया 40. अभी हम एलसीएम में इनके डिनोमिनेटर से डिवाइड देंगे, तो 5 का डिवाइड दिया हमने 40 में, तो 5 8 जा 40, क्वोशिएंट 8 आया. 8 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने फ्रैक्शन 3/5 से, सो 3 × 8/5 × 8 इक्वल्स टू 24/40. हमने अब नेक्स्ट फ्रैक्शन मीन्स 5/8 के डिनोमिनेटर 8 का डिवाइड दिया 40 से, तो
तो 8 5 जा 40 मीन्स 5 आया, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने 5/8 से। 5/8 इक्वल्स टू 5 इंटू 5/8 इंटू 5 दैट इज 25/40। अब भी जब दोनों लाइक फ्रैक्शन में चेंज होगी तो हम इन्हें ऐड कर देंगे डिनोमिनेटर्स को सेम रखते हुए। सो 24/40 प्लस 25/40 इक्वल्स टू 24 प्लस 25/40 मीन्स 49/40। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और उसके बाद उन्हें लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। टू मल्टीप्लाई फ्रैक्शन विद अ होल नंबर, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन विद द होल नंबर कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम। अगर हमें मल्टीप्लाई करना है किसी फ्रैक्शन में किसी होल नंबर से तो हम उस होल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए 12/17 इंटू 5, तो हम 5 का यहाँ पर 12/17 आपकी फ्रैक्शन है और 5 होल नंबर है, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12 से और 17 मीन्स डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे, सो 60/17। नेक्स्ट इज 2 कंप्लीट 3/5 इंटू 4, तो यहाँ पे 4 आपका होल नंबर है एंड 2 कंप्लीट 3/5 फ्रैक्शन है, तो पहले इसे हम चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करके आया ये 13/5, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 13 इंटू 4/5 मीन्स 52/5। सेकेंड इज टू मल्टीप्लाई टू फ्रैक्शंस। अगर हमें दो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई करना है सो मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स टुगेदर एंड मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स टुगेदर। तो इस ऐसे केस में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल 7/5 इंटू 2/3, तो इसके न्यूमरेटर 7 इंटू 2 और डिनोमिनेटर्स 5 इंटू 3 का सेपरेट मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज 14/15। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस इज 1, अगर किसी भी दो फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट 1 आता है, किसी भी दो फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट 1 आता है, देन द फ्रैक्शंस आर कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो ऐसी फ्रैक्शंस को हम एक दूसरे का रेसिप्रोकल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल द रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 इज 3/2। द रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। तो रेसिप्रोकल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, केवल जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देंगे। मीन्स 5/12, एग्जाम्पल लिया हमने 5/12, तो 5/12 के न्यूमरेटर 5 है और डिनोमिनेटर 12 है, इनको एक्सचेंज कर देंगे, सो इट विल बिकम 12/5। मीन्स 5/12 का रेसिप्रोकल क्या हुआ, 12/5। 1/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 4 या फिर 4/1। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन। टू डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन मल्टीप्लाई द फर्स्ट फ्रैक्शन विद द रेसिप्रोकल ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन। डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल का फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल 5/32 डिवाइड बाई 10/16, तो 5/32 को एज इट इज रखेंगे, 10/16 का रेसिप्रोकल कर देंगे, मीन्स 16/10। तो 5/32 इंटू 16/10, इसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 5 इंटू 16/32 इंटू 10। सॉल्व कर देंगे इसे, तो इट विल बिकम 1/4। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 5 कंप्लीट 3/7 डिवाइड बाई 8/21। सबसे पहले हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 38/7 इंटू 21/8, इसके बाद हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे और इन्हें रिड्यूस कर देंगे, सो द आंसर इज 57/4। अब क्योंकि क्वेश्चन हमारा मिक्स में था, मिक्स फ्रैक्शन में तो आंसर भी हम मिक्स फ्रैक्शन में ही देंगे, सो 14 कंप्लीट 1/4। नेक्स्ट इज सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग फ्रैक्शन, सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग फ्रैक्शंस, ऐसे एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना जिनमें फ्रैक्शंस इंक्लूड हो। हमने सिंप्लीफिकेशन सीखा हुआ है, वही सिंप्लीफिकेशन अब फ्रैक्शंस की फॉर्म में हम करेंगे। फॉर सिंप्लीफाइंग द एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग फ्रैक्शन द बोडमास रूल इज यूज्ड। अकॉर्डिंग टू द बोडमास रूल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या करते हैं, बी से ब्रैकेट्स सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट सॉल्व द ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट्स का ऑर्डर होता है फर्स्ट लाइन ब्रैकेट, देन राउंड ब्रैकेट्स मीन्स पैरेंथेसिस, नेक्स्ट कर्ली ब्रैकेट्स एंड द लास्ट स्क्वायर ब्रैकेट, इसके बाद ऑफ, then division, multiplication, addition, and in the last subtraction. See the example. Simplify 3/8 divided by curly braces 5 complete 2/3 minus parenthesis 4 plus 1/2 minus 1/3 line bracket parenthesis closed curly bracket closed plus 3 complete 5/2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। लाइन ब्रैकेट सॉल्व करने पे आया हमारा 1/2 minus 1/3 इक्वल्स टू 1/6। इसके बाद हम राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, तो राउंड ब्रैकेट में था 4 + 1/6, जिसे सॉल्व करके आया हमारा 25/6।
इसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो कर्ली ब्रैकेट्स में एक फ्रैक्शन जो है वो हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो उसे हम पहले इम्प्रॉपर चेंज कर लेंगे। मीन्स 5 कंप्लीट 2/3 इक्वल्स टू 17/3। इसके बाद हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इट इज 9/6। कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हम डिवीजन सॉल्व करेंगे। सो डिवीजन सॉल्व करके 3/8 डिवाइड बाई 3/2 इक्वल्स टू 1/4। इसके बाद हम एडिशन सॉल्व कर देंगे, दैट इज 23/4। सो दैट इज द आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेसन वेल। In next video, we will discuss about next chapter. Till then, keep studying. Thank you.